عزیز بہن بھائیوں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہمارے پیغام کا مضمون کیا ہے؟ آواز نہیں، ابھی بھی آواز نہیں۔ آج کے پیغام کا مضمون ہے تو مت ہے۔ خدا شخصی طور پر ہر ایک سے ہم کلام ہوتا ہے۔ شخصی طور پر خدا ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو مت ڈر۔ یہاں پر پوری جماعت ہے اور پوری جماعت سے خدا کہتا ہے کہ تو مت ڈرو۔ زمانہ جدت کے اندر ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈر نے ہماری زندگیوں پر بسیرا ڈالا ہوا ہے۔ ڈر جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکے بیٹھا ہے۔ ڈر کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں جو ہیں، برکتیں جو ہیں، بخششیں جو ہیں وہ ہم سے دور ہیں۔ شاید ڈر کی وجہ سے ہم وہ نعمتوں اور برکتوں کو پانے کے لائق نہیں ہوئے۔ ڈر کیا ہے؟ اگر ہم ڈر کے لغوی معنی دیکھیں، ڈر کے لغوی معنی ہے خوف، اندیشہ یا خطرہ۔ اگر خوف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر ہے۔ اگر اندیشہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر ہے۔ اگر خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر ہے۔ لیکن ہمارا ڈر کیا ہے؟ ہم بڑی رو انسانوں کا ڈر کیا ہے؟ اگر ہم ڈر کو اپنی انگلیوں پر شمار کرنے لگے تو بہت سارے ڈر جو ہیں وہ ہم میں سے ظاہر ہوں گے۔ آج ہم تمام نے اس ڈر کو جو ہے وہ ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دھمکی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بیٹا نہ ڈر، یہ اچھی بات ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں اور اکثر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو ڈرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جا جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ہم نے اس ڈر کو اتنا اپنے بچوں کے اندر ڈالا ہے کہ اس ڈر کا غلط استعمال جو ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اس ڈر کا کیسا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچے سے بیٹا تو نہ ڈر، اور بیٹا اتنا ناڈر ہو گیا ہے، اتنا ناڈر ہو گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ تمیز کا دائرہ ختم ہو گیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہے بڑے چھوٹے کی تمیز جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ ٹیچر ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا محلے دار ہے۔ اتنا ناڈر ہم نے بنا دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ٹیچر ماں باپ کو بتاتے کہ آپ کا بچہ پڑھتا نہیں اچھا، یہ کام نہیں کرتا، اس کے نمبر نہیں اچھے آتے، اور ماں باپ جو ہے وہ بچے کو ڈانٹتے، پیار کرتے، اس کی پڑھائی میں، اس کے معاملہ میں اس کی تائید کرتے۔ لیکن آج کے دور میں ماں باپ کی اگر بچے ٹیچر شکایت کرتا ہے تو ماں باپ کو بچہ جا کر غلط بتاتا ہے، کیونکہ بچے کو ناڈر بنا دیا ہے۔ بچہ بند کر رو رو کر کہتا ہے میرے ٹیچر نے مجھے مارا، میرے ٹیچر نے مجھے یہ کہا، اور ماں باپ اتنا غصے میں آ جاتا جا کر ٹیچر سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور یہ تجربے کی بات اب دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ بچے کے سامنے ٹیچر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بچے کے سامنے ٹیچر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اتنا بچوں کو نڈر کر دیا ہے، اور ہم بہادر کتنے ہیں؟ ہم کتنے بہادر ہیں؟ ہم اتنے بہادر ہیں کہ ایک چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں۔ کتنے بہادر ہیں؟ ایک چھپکلی یہاں پر ہمارے درمیان آ جائے تو یہاں پر بہت ساروں کی چیخیں نکلے گی، بہت سارے بھاگیں گے، اور ایک ڈر سے یہاں پر ہلچل مچ جائے گی۔ ہم اتنے بہادر ہیں کہ ایک چھوٹی سی چھپکلی سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ ڈر پائے گا۔ ہم ایسی مشینوں سے ڈرتے ہیں، ایسی مشینوں سے بھی ہمارا ڈر جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ ایسی مشینیں جس کے پاس، اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، جس کے پاس یہ مشین ہے ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہم اس ڈر کو بھی اپنے اندر رکھے بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طرح کا ڈر یہ بھی ہے کہ میری کسی
अच्छे عہدیدار کے ساتھ دعا سلام ہے، میرا تعلق ہے، میرا واسطہ ہے، اس کے ساتھ کیا میری دوستی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، تو میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میرا تعلق واسطہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تعلق واسطے کی وجہ سے میں آ کر بہت ساروں کو ڈرا رہا ہوں، بہت ساروں کو دھمکا رہا ہوں اور بہت ساروں کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اپنی دہشت پھیلا رہا ہوں، اپنی دہشت کے وسیلہ سے لوگوں کے اندر خوف ڈال رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے، وہ مجھے چھڑائے گا، مجھے نہیں چھڑائے گا، وہ آ کر مارے گا، وہ آ کر گرائے گا، وہ آ کر لڑائے گا، وہ آ کر پھنسائے گا۔ یہ فکر ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں میں ہمارے ملک کا کیا حال تھا، ہم نے دیکھا مئی کے مہینہ میں پورے ملک میں ایسے نوجوان تھے اور اس طرح کی بھی کوئی ہم ٹی وی پر فائٹ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اس قدر اپنے بچوں کو نظر بنا دیا، سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم پیسے والوں سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے اونچائی سے، اگر میں کسی تیسری چوتھی منزل سے نیچے دیکھتا ہوں تو میرے اندر پہلا ڈر یہ پایا جائے گا کہ میں نیچے گروں گا اور مر جاؤں گا۔ ہاں بھائی حقیقی بات ہے کہ اوپر سے نیچے گرے گا مر جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنا تو ہے، پھر ڈرنا کس بات کا؟ ہم اندھیروں سے ڈرتے ہیں۔ آج کے زمانہ میں کہاں گیا ماں باپ کا ڈر، کہاں گیا بڑوں کا ڈر، کہاں گیا استادوں کا ڈر، کہاں ہے ماں باپ کی تعلیم، کہاں ہے استادوں کی تعلیم، کہاں ہے بڑوں کی تعلیم، اور کہاں پر کیا خدا کا ڈر؟ کسی کا نظر نہیں آتا۔ کتنے یہاں پر جو خدا سے ڈرتے ہیں؟ آپ کھڑے تو بس میں سب سے امتحان لوں نا تو کوئی ایک بھی پاس نہیں ہوگا۔ اگر میں ایک سے پوچھوں کہ خدا کے ڈر کو بیان کروں، ظاہر کروں، تو شاید ہم کہہ دیں۔ بائبل مقدس اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں متی 10واں باب اس کی 24ویں آیت میں دیکھیں تو متی 10ویں باب کی 24ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے شاگرد جو تھے وہ آپ کی تعلیم کو سنتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور آپ کی باتوں کی چرچا کے لیے اور آپ سے سیکھنے کے لیے ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور آپ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا اور آپ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آپ نے ان تمام سے کہا کہ استاد جو ہے استاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر مالک سے بڑا ہوتا ہے۔ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، نوکر کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مالک کی مانند ہو، اور جو کچھ میں تم کو اندھیرے میں کہتا ہوں تو وہ اجالے میں کہو، اور جو کچھ کان میں تم سنتے ہو اس کی بڑے کوٹوں پر جا کر منادی کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ بس ڈرو نہ۔ اپنے ان تمام کو اپنے سارے شاگردوں کو یہ بات کہی کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ جو روح اور بدن دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر ختم کر سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، یعنی کہ خدا، اور خدا سے ڈرو، بس تمہیں ڈرو نہیں۔ حالاتوں سے، واقعات سے۔ اور پیدائش 26ویں باب کی 17ویں آیت میں اگر ہم جانیں تو وہاں پر ایک بہت دلچسپ ایک واقعہ قلم بند ہے۔ لکھا ہے کہ بزرگ ابراہیم کا بیٹا جب بڑا ہوا تو بزرگ ابراہیم کا بیٹا اسحاق جنات کی وادی میں آیا اور اس نے وہاں پر ڈیرا لگایا اور وہاں پر رہنے لگا، اور اسحاق نے جب جنات کے علاقہ میں ڈیرا لگایا اور جنات کے علاقہ میں رہنے لگا اور رہتے ہوئے سے وہاں پر پانی کے کنویں کو کھودنے کی طلب تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ ہمارا کنواں جو ہے وہ اپنا ہو، اور اس نے وہاں پر پانی کے لیے کنواں کھودا، اور جب پانی کے لیے کنواں کھودا تو کنواں کھودتے کھودتے اسے ایک پانی کا سوتا مل گیا۔ جب پانی کا سوتا ملا تو جنات کے کچھ لوگ، جنات کے کچھ چرواہے جو ہیں وہ اسحاق کے پاس آ کر اس کنویں کے سب سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسحاق اور اس کے نوکر چپ کر کے نہ تو لڑائی کا جواب دیتے ہیں نہ آگے سے لڑتے ہیں، چپ کر کے وہ کنواں چھوڑتے ہیں اور کنواں چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا کر یہ پھر کنواں کھودنا
शुरू कर देते हैं। और जब दूसरा जो कुआं खोद रहे थे तो वहां पर भी आकर लोगों ने इनसे झगड़ना लड़ना शुरू कर दिया, और वहां पर भी ये खामोश रहे, वहां पर भी इन्होंने कोई बात नहीं की, वहां पर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और ये तीसरी जगह पर गए, और तीसरी जगह पर जाकर इन्होंने अपने लिए एक कुआं खोदा, और वहां पर जब कुआं इन्होंने खोदा तो वहां पर कोई लड़ाई नहीं, वहां पर कोई बात नहीं, वहां पर कोई भी इनके साथ लड़ने नहीं आया। और खुदा जो है वो इसहाक और उसके नौकरों को देख रहा था। अब खुदा लिखा है कि उसी रात इसहाक पर जाहिर हुआ, और खुदा उसी रात इसहाक से कहता है, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे बरकत दूंगा और अपने बता इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। खुदा देख रहा था कि लोग तो इससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, लोग से झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये अपने से झगड़ता नहीं है। और तीसरी बार जब इसने बोल देता तो खुदा कहता है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बाप इब्राहिम की खातिर उस वादे को जो मैंने उसके साथ किया है जलाल दूंगा। तो मत डर, खुदा उनके साथ है जो जिनके अंदर तहम्मुल पाया जाता है। और खुदा ने इसके तहम्मुल को देखा, इसने अपनी फिक्र नहीं की कि वो मुझसे लड़ गए, हारे चुप तहम्मुल था। और खुदा तहम्मुल में कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। और 12 वापस की 13 आयत में लिखा है, हिकमत का बादशाह सुलेमान कहता है जब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल यही है। अब हिकमत का बादशाह कहता है कि सब कुछ सुनाया गया है, हासिल कलाम ये है, सब कुछ देख लिया गया है, सब कुछ खा लिया गया है, सब कुछ को फेर लिया गया है, पूरे जमाना को देख लिया। और मैं बादशाह अपनी बुजुर्गी के अय्याम में बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा और हिकमत देख चुका हूं, सब कुछ सुनाया गया। और हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है, फर्ज कुली यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरे। और खरूज पहले बाप की 15वीं आयत से लिखा है, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद और समुद्र के किनारों की रेत के जर्रे की मानद बढ़ाऊंगा। और फिर खुदा ने वादा किया इसहाक से कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मिस्र की गुलामी में जब ये इस्राएली काम थे तो लिखा है कि इस्राएल में ये बढ़ते जा रहे थे, इनकी तादाद जो थी काफी होती जा रही थी, इनकी तादाद में काफी इजाफा होता जा रहा था। और इस सबब से मिस्र का जो फराउन था, मिस्र का जो बादशाह था, उसने बड़ी परेशानी का इजहार किया और उसने अपने खानों को बुलाया और बुलाकर कहता है कि देखो ये इस्राएली हमारे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये हमारे मुल्क में मुकाबले खड़े हो जाए, हमसे जंग लड़े और हमें हमारे मुल्क से निकाल दे। अब इन पर हमें सख्ती करनी होगी, अब इन पर हमें जुल्म और सितम डालना होगा, अब इनसे हमें काम ज्यादा लेना होगा। अब यहाँ पर बादशाह ने ये बात कही और उधर लिखा है कि बादशाह ने अपने पास 2 भाइयों को बुलाया और ये 2 भाइयों जो है वो बादशाह के पास आती है और बादशाह भाइयों से कहता है कि तुम दोनों को मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम दोनों मेरी बात को गौर से सुनो। और लिखा है कि ये दोनों भाइयों सफीरा और रूपा जब इस बादशाह के पास आती है और बादशाह के सामने खड़ी होती है, ये इब्रानी होते हैं और बादशाह दोनों भाइयों से कहता है कि जब तुम इसराइलियों के बच्चों को जगने चाहती हो, जब इसराइलियों के बच्चे होते हैं तुम वहां पर होती हो, तो अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात को गौर से और ध्यान से अपने अंदर रख लो। जब तुम बच्चे जगने जाओ तो अगर तो बेटा पैदा होता है वहां पर उसे जान से मार दो, अगर बेटी पैदा होती है तो उसे जीता ही छोड़ देना। अब बादशाह ने ये फरमान जारी कर दिया है और इन दोनों भाइयों ने फरमान को सुन लिया और फरमान को सुनकर ये उसके महल से बाहर जाती है और महल से बाहर जाकर ये बादशाह की कही हुई बात को याद तो रखती है, बादशाह की कही हुई बात है इनके अंदर तो है, लेकिन इन्होंने बादशाह की कही हुई बात पर अमल ना किया। और लिखा है लेकिन वो भाइयां खुदा से डरती थी तो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। और ये है डर कि इन्होंने बादशाह की परवाह ना की, बादशाह के हुक्म की परवाह ना की और इस बात की परवाह ना की कि बादशाह इनको मरवा डालेगा, बल्कि इन्होंने खुदा के डर को अपने अंदर रखा क्योंकि ये खुदा से डरती थी। और बादशाह ने इनके सामने जर्रे की मदद था, जब हमारे अंदर खुदा
कहते हैं कि खुदा ने समंदर को जो हिस्सों में कर दिया, खुदा ने पहाड़ों को जर्रा जर्रा कर दिया, खुदा ने यरों की दीवारों को गिरा दिया, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को आज तक न आने दी। अगर 17 जो आपके अंदर डालेंगे, आपने उन्हें जब तक न बचाए। अगर दानियों को शेरों के आगे डाला गया तो शेर उसके पास भी आने के रहे, क्योंकि उनके अंदर यह हवा खुदा का बेशुदाई का डर था। और डर जो है जब हमारे अंदर खुदा का होता है तो बाइबल मुकद्दस हमें शहादतें देती है। यशाया 8वें बाब की 9वीं आयत से लिखा है, यशाया फरमाता है, ऐ लोगों धूम मचाओ पर तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। सुनो, ताल लगाओ और अपने कमरे बांधो, तुम्हारे पुर्जे पुर्जे किए जाएंगे। तुम सुबह बांधो पर वो बांधा हो जाएंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया कि जैसे ये साजिश करते हैं इससे तुम साजिश ना करो, और जिस बात से वो डराते हैं तुम ना करोगे, ना घबराओगे। रब्बुल अफ़वाज ही को मुकद्दस जानो, उसी से डरो और उसी के खाए पर रहो। अभी यहाँ पर खुदा यशाया के वसीला से कहता है कि रब्बुल अफ़वाज का ही ध्यान रखो और किसी के डरावे से ना डरो ना घबराओ, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और हमारा फर्ज कुल ये है कि हम खुदा से डरें। फर्ज कुल ये, और जिस बंदे ने खुदा के डर को अपने अंदर रखा है वो जीरो से हीरो देखते हैं। किसी कामयाब शख्स की कहानी देखें, वो गुर्बत से ऊपर आया और उसके अंदर आपको खुदा का डर नजर आएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों में इस बात की तहकीक की है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आज महलों बंगलों के मालिक हैं। सलामीन की दूसरी किताब 6वें बाब में लिखा है कि इसराइल जो है वो अरामियों से जंग लड़ रहे थे। इसराइल की जंग जो थी वो अरामियों से हो रही थी, और जब अरामियों के साथ इसराइल जंग लड़ रहा था तो इसराइल का बादशाह जो है वो अपने खादमों को बुलाकर मंसूबा बनाता है और अपने खादमों को बुलाकर कहता है, अपने सिपा सलारों को बुलाकर कहता है कि अरामियों के साथ हमारी जंग लड़ती है। अब ऐसा करो कि तुम अपने सिपाहियों को बला जगह पर जाकर खड़े कर दो ताकि अरामियों को हम जल्दी से मार सके, ताकि अरामियों पर हम गलबा पा सके। और लिखा है कि वहां पर एक मर्द खुदा था, खुदा का एक बंदा था, एक नबी था, और उस नबी ने इसराइल के बादशाह को एक कहला भेजा और कहा कि खबरदार तो भला जगह पर से ना गुजरना, क्योंकि वहां पर अरामी फौज जो है वो आने का है, वो तेरी घात में बैठी हुई है। तो वहां पर भला जगह पर अपने सिपाहियों को ना भेजना ताकि तेरे सिपाही मारे न जाए। उसने अपने बादशाह को, अपने लोगों को खबरदार कर दिया, और इस सबब से अरामियों का बादशाह जो है वो बड़ा परेशान है। अरामियों का बादशाह जो है हैरान है और कहता है कि भाई हम में से कौन जासूसी करता है, हम में से कौन उनकी तरफ है, कौन जाकर उनको इत्तला देता है, कौन जाकर बताता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो वहां पर आते नहीं है। उसका खादम कहता है, मालिक है बादशाह तेरी सलामती हो, हम में से उनकी तरफ कोई भी नहीं है, कोई भी जासूसी नहीं करता, कोई भी साजिश नहीं करता। अब वहां पर एक मसला ये है कि वहां पर एक मर्द खुदा है, वहां पर एक नबी है जिसका नाम अलीशा है, और खुदावंद का दीदार उसे नसीब होता है। वो खुदा उससे बात करता है और वो अपनी फौज को पहले से ही बता देता है कि हम बला जगह पर छुपे रहते हैं। अब बादशाह खतरनाक होता है, बादशाह कहता है कि जाओ और जाकर उस नबी को उठा लाओ। अब यहाँ पर अरामी जो है बड़ा ही दिल बांध कर रथों और घोड़ों पर जाते हैं और जाकर अलीशा नबी के घर को और अलीशा नबी के घर के इर्द के सारे इलाके को घेर लेते हैं। घोड़े और रथों के साथ अलीशा को उठाने के लिए अरामी बादशाह ने अपनी बड़ी फौज भेजी है। अब सुबह सवेरे लिखा है कि अलीशा का एक आदम घर से बाहर निकलता है, और घर से बाहर जब निकलता है तो देखता है कि इसके घर के इर्द गिर्द एक बड़ी फौज ने इन पर घेरा डाला हुआ है, इन्हें घेर लिया है। और ये भागकर अपने खादम के पास जवाब के अपने साहब के पास जाता है और अपने उस्ताद से कहता है, अरे मालिक उस्ताद हम तो घेरे जा चुके हैं, हमें तो अरामी फौज ने घेर लिया है। अरामी फौज के बड़े बड़े रथ और घोड़े और अरामी फौज का लश्कर हमें घेरे हुए हैं। लेकिन अलीशा नबी बड़े तहम्मुल से अपने को से शगीर से कहता है, तो आप नाम था
जल्दी से अपना हाथ अपने इस शहीद पर बढ़ाया और इसके दुआ की और कहा कि ऐ खुदा इसकी आंखें खोल दे ताकि ये तेरे इंतजाम को देखे, इसकी आंखों को तो अपने जल्लाओं से बचे ताकि ये अपनी आंखों से देखे कि तो खुदा हमारे साथ। और जब अलीशा ने उस पर दुआ की और खुदा ने उसकी रूहानी आंखें खोल दी और जैसे ही उसकी रूहानी आंखें खुलती है वो अपनी रूहानी आंखों से देखता है कि अलामी फौज के गिर्द भी एक फौज है और वो फौज आपसी फौज है, वो फौज खुदा की है और एक कमर से ज्यादा फरिश्ते जो है अलामी फौज को घेरे हुए हैं और कहता है खौफ ना खा क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। ये तो कुछ नहीं है। देख मेरे खुदा ने कितनी बड़ी फौज को, देख मेरे खुदा ने आपसी रथों को, देख मेरे खुदा ने आसमानी फौज को घेर के यहाँ तक भेजा हुआ है और कहता है कि तो खौफ ना खा हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से बहुत ज्यादा है। और आज खुदा कहता है शक्ति तौर पर कहता है खौफ ना खा। और आज मैं खुदा का बंदा मर्दे खुदा कहता हूँ हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से कहीं ज्यादा है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और जमीन उसके पाँव की चौकी है और वो अपने फरिश्तों को हमारे और अपने खादमों को अपना शोला में लाकर इस्तेमाल करता है और हमें आंख भी नहीं आने देता, हमें सर भी नहीं आने देता और इसलिए करता है तो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हंसा ना हो, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। और खुदा हम तमाम से शख्सी तौर पर यही चाहता है हम डरेगा, हमारे साथ बहुत बड़ी फौज है और सबसे बढ़कर खुदा हमारे साथ है। तो फिर हमें डर किस बात है? क्यों रुकावटें जो है हमें हरा कर चली जाती हैं? दाऊद ज़बूर 3 उसकी 6 आयत में फरमाता है मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं। मर्दे खुदा दाऊद कहता है कि मेरे गिरदा गिर्द 10,000 आदमी भी आ जाएंगे, मैं उनसे डरने का नहीं। जो मेरे गिरदा गिर्द सब बसता है मैं उनसे डरने का नहीं। 10,000 आदमी भी मेरे पीछे गिरद गिर्द आ जाएंगे, मैं उनसे नहीं डरूंगा। मैं तो अपने जिंदा खुदा से डरता हूँ और मेरा जिंदा खुदा मुझे छुड़ाने की कुव्वत और ताकत रखता है। और यूहन्ना आरब जब खुदा के मुकाशफा को लेता है और खुदावंद उससे अपना कलाम बयान करता है और जब उस पर मुकाशफा जाहिर होता है तो यूहन्ना आरब 14 बाब की 6 और 7वीं आयत में कहता है फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अपनी खुशखबरी थी। मैंने आसमान के बीच में एक फरिश्ता देखा और उस फरिश्ते को जब मैं देखा उसके पास जमीन के रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। जमीन की रहने वाली हर एक कौम कबीला अहले जुबान के लिए उसके पास बड़ी खुशखबरी थी और बड़ी खुशखबरी लिए हुए मैंने उसे आसमान के बीच में उड़ते देखा, सुनते देखा। और वो खुशखबरी क्या थी? उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा खुदावंद से डरो और उसकी तमजीद करो क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे बनाए हैं। अब बड़ी खुशखबरी जमीन के रहने वालों को, बड़ी खुशखबरी हर एक कौम को, हर एक कबीले को, हर एक जुबान को बड़ी खुशखबरी ये है कि खुदावंद से डरो, उसकी इबादत करो, उसकी तमजीद करो जिसने जमीन, आसमान, समंदर और पानी के चश्मे बनाए हैं। उसी से डरो, सिर्फ खुदा से डरो। खुदा के डर के अलावा, माँ बाप के डर के अलावा, बड़ों के डर के अलावा, बुजुर्गों के डर के अलावा, इन डरों के अलावा अगर हमें किसी चीज का डर है तो ये गुनाह है, ये गुनाह है। खुदा का डर, माँ बाप का डर, बड़ों का डर, बुजुर्गों का डर भाई से बढ़कर। अगर इन डर के अलावा हमारे अंदर और डर पाए जाते हैं तो ये सरासर गुनाह है। और मुकाशफा 21 मुहाफ़िज़ की 8वीं आयत में लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर हम बिना वजह डरते हैं, बिना वजह, तो फिर बुज़दिल है,
بزدل کا ہی سامنا ہے، آگ اور گندک سے چلنے والی جیل، اور یہ دوسری موت ہے۔ تو اچھا لگتا ہے کہ ہم اسی روایت کو قائم کریں جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ گھر کے ساتھ والے بزرگ بھائی اتنا ہی ڈر تھا جتنا میرے باپ کا تھا، میرے محلے میں جو بڑے ہیں مجھے اتنے ڈر ان کا ہوتا تھا جتنا میرے باپ کا ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں، آج ہم اس سے کہتے ہیں تو کون نہ کہنا والا، یہ چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہے۔ گھر میں تو بچہ سونے جیسا لگتا ہے، لیکن باہر اس کی آپ عادتیں دیکھیں، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ برے کام بھی کرتا ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے بچے گئے ہوئے، ہم نے بچوں کو نہ ڈر بنا کر معاشرہ خراب کر دیا ہے۔ تو میرے تمام عزیزوں، خدا کا ڈر ہمیں احترام سکھاتا ہے، اور یہ احترام ہم دوبارہ واپس لائیں گے۔ اسی سے ڈرو جس سے ڈرنا چاہیے، اور اسی کی عزت کرو جس کی عزت کرنی چاہیے۔ آئیے ہم تمام اپنے سروں کو جھکائیں۔